Assalamu alaikum. I am Muzaffar Iqbal. In this lecture, we will discuss about abstract classes in Java. So the first thing is that what is an abstract class and why we need to define abstract classes while writing code. While writing code, sometimes you will not be able to define the body or detail of some methods while writing a class. In abstract classes, you have to write a complete code, but in that particular class, there should be at least one method about which just you know that this kind of functionality, this kind of process should be performed, but you don't know exactly about the detail of the functionality. So if this kind of function or this kind of method is included in a class where detail is unknown at the time of writing the code, then this class can be declared as an abstract class. Another aspect could be like this. There could be some situations when inheritance must be required. Sometimes this could be implemented like this class must have some children. In other words, this class must be inherited. So if you want to enforce this implementation that this class must be inherited, so with abstract classes, this kind of rule can be enforced that if this class is not inherited, then you cannot define object of this particular class. So if you want to enforce that inheritance must be performed over here, then this kind of thing, this kind of enforcement can be made through abstract classes. So any class having at least one abstract method is called an abstract class. Or in abstract class, there should be at least one abstract method. Now the question is, what is an abstract method? Abstract method can be defined like this. It could have a public, protected, or default access specifier. It must have an abstract keyword. This could have a return data type. It should have a proper name, and then it could have some parameters along with data type. But the most important thing is that abstract method must have semicolon at the end. This is a method which cannot define its definition, or we cannot define body of this method. The body of this method is defined by the derived classes of this particular class. And this is the method due to which the class becomes abstract. So any class having at least one abstract method is called an abstract class. In abstract class, you can define one or more than abstract methods, or even you can define complete methods having complete body, but at least one method must be abstract due to which the class becomes abstract. तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है. लेट्स से कि हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, उसका नाम है शेप. इसके लिए हमारे पास ये एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है, एवरी शेप मस्ट शो सम नेम. दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ शेप क्लास. एट दिस टाइम इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द शेप, तो मैंने यहाँ पे जस्ट इनिशियलाइज किया कि द नेम ऑफ द शेप इज नथिंग, बट दिस इज पैरामीटराइज्ड क्लास. इस दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इस कंस्ट्रक्टर में मैंने यूजर से एक वैल्यू स्ट्रिंग पास कराई, और वहाँ से जो भी नेम आएगा दैट विल बिकम नेम ऑफ द शेप. इसको आगे यूज करेंगे अगले एग्जांपल में. The main thing is that in the shape class there is a method, its name is calculate area. इस स्टेज पे हम ये कोड लिख रहे हैं, वी डोंट नो कि हमारे पास शेप क्या होगी. दिस कुड बी रेक्टेंगल, दिस कुड बी ट्राइंगल, दिस कुड बी सर्कल, दिस कुड बी एनी शेप. और जितनी भी शेप्स हमारे पास होती हैं उनका कोई ना कोई एरिया होता है, और हर शेप का एरिया निकालने का फार्मूला इज डिफरेंट. सो एट दिस स्टेज वी कैन नॉट डिसाइड कि हमारे पास जो शेप का एरिया निकालने का फार्मूला होगा वो यहाँ पे क्या होगा. क्योंकि हम यहाँ पे अगर एरिया निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल पा रहे, तो इनफैक्ट दिस मेथड कैन नॉट बी डिफाइंड और हियर हम उसकी बॉडी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इस शेप का एरिया कैसे निकालें. लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि हमने एरिया निकालना है, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर स्टेज हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो एरिया कैसे निकाला जाएगा और वो क्या होगा. सो जब इसकी बॉडी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से ये हमारे पास जो मेथड बनेगा दिस बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, और इस वजह से हमारे पास ये जो क्लास बनेगी वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है. हमने पहले देखा कि कोई भी क्लास जिसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो हमारे पास वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है. अगर मैं यहाँ पे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता तो मुझे कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि कोई भी क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट ना हो तो कंपाइलर वो कोड कंपाइल नहीं करता. जो हमारे पास ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई है, इस वजह से मैं इस क्लास के
मेथड इस क्लास के में ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर सकता। इस क्लास को हमने लाजमी इनहेरिट करना होगा और जो इनहेरिट करेगा इस क्लास को वहाँ पे हमने इस मेथड की बॉडी डिफाइन करनी होगी कि इस ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है। इसकी बॉडी में हमें जो भी कोड वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा ये हम तब लिखेंगे जब इस क्लास को इनहेरिट किया जाएगा। लेकिन आगे जाने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक और मेथड है, दिस इज डिस्प्ले। दिस इज अ कंप्लीट मेथड, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास जस्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, हमारे पास एक या मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अलावा हमारे पास कंप्लीट मेथड भी हो सकते हैं। जो आपको ये नजर आ रहा है हमारे पास एक कंप्लीट मेथड है, इसकी कंप्लीट बॉडी है। ये मेथड बेसिकली जो करंट शेप होगी उसका जो भी नेम आपने डिफाइन किया होगा उसकी डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। हमारे पास ये एक और क्लास है, इसका नाम है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल क्लास में मैं शेप की क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल क्लास में हमारे पास ये लेट्स से कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके विड्थ और उसकी हाइट निकालने के लिए। ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मुझे फिलहाल ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इट शुड बी डिफाइंड कन्वेंशनली। आपके हर क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें ये दो पैरामीटर्स रिसीव करेगा, वन फॉर विड्थ एंड सेकंड फॉर हाइट। जो भी आप वेट एंड हाइट रिसीव करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में, तो वो हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो जाएगी उसकी वेट में, और जो एच की वैल्यू होगी वो चली जाएगी हाइट में। और हमने यहाँ पे वेट और हाइट दो पैरामीटर डिफाइन किए थे इस क्लास के, जिसका नाम रेक्टेंगल है। सुपर रेक्टेंगल, सुपर इस कीवर्ड, और अगर आप चाइल्ड क्लास में सुपर का कीवर्ड यूज करते हैं तो ये बेसिकली रेफर करता है पेरेंट को। यहाँ पे मैंने सुपर यूज किया है। मैं इनफैक्ट यहाँ पे जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करना चाह रहा हूँ, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि एक स्ट्रिंग रिसीव कर सकते हैं। तो सुपर रिप्लेस हो जाएगा पेरेंट क्लास के नेम से जो यहाँ पे शेप होगा, और उसके बाद मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग सेंड कर रहा हूँ। ये स्ट्रिंग इनफैक्ट रिसीव करेगा ये वाला कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमारे पास वो शेप का नाम जो हमने वहां से भेजा था रेक्टेंगल, वो ये रिसीव कर देगा और उस रेक्टेंगल को ये कॉपी कर देगा नेम एट्रीब्यूट में। नाउ द शेप बिकम्स रेक्टेंगल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास पेरेंट यानी कि शेप क्लास में ये वो मेथड था जो कि हम डिफाइन नहीं कर सके थे कि इसकी बॉडी क्या होगी। नाउ दिस बिकम्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड क्लास कि वो इस मेथड की बॉडी को डिफाइन करेगा। तो नाउ दिस इज द चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस इज कैलकुलेट एरिया मेथड, और ये वो मेथड था जिसकी बॉडी हम पेरेंट क्लास में डिफाइन नहीं कर सके थे। इनहेरिटेंस में आपने एक चीज पढ़ी कि अगर आप पेरेंट के मेथड को चाइल्ड में दोबारा से रीडिफाइन करते हैं देन दिस थिंग इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। तो इनफैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के मेथड्स को जब भी इंप्लीमेंट करवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड कर रहे होते हैं। तो ये हमने लिखा था यहाँ पे पेरेंट में, और इसी को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे विद द सेम नेम इन चाइल्ड। नो दिस इज ओवरराइडिंग, और ये आपने कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मैं ये पिछला ये जो मेथड जो आगे जिसका नाम आने वाला है मैं इस मेथड को इन्फैक्ट ओवरराइड करना चाह रहा हूँ। ये ऑलरेडी पेरेंट में डिफाइंड था हमारे केस में, यहाँ पे उसका नाम तो डिफाइन हो गया था, इसकी बॉडी डिफाइन नहीं हुई थी, और इसकी बॉडी मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में डिफाइन की। और यहाँ पे जो कि नो दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज डिसाइडेड कि ये रेक्टेंगल की क्लास है। तो इसका एरिया आप सबको पता है कि अगर आप विड्थ एंड हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे देन दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये आपको रिटर्न करेगा इसकी एरिया को। द मेन पॉइंट इज कि पेरेंट क्लास में आप जिस मेथड को डिफाइन नहीं कर सके थे, आपने उसको वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बना दिया था, वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर सपोज इस चाइल्ड में अगर आप इस मेथड को डिफाइन ना कर पाते तो ये जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है ये खुद एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, और आपको यहाँ पे क्लास से पहले इसको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मेंशन करना था कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये क्लास खुद एब्स्ट्रैक्ट बन गई है। लेकिन चूंकि आपने पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है तो इस वजह से नो दिस इज अ कंप्लीट क्लास। इसको अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। नो लेट्स सी कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस क्लास में आपने रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम आर, ये उसका कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हैं। यहाँ से आप दो वैल्यूज सेंड कर रहे हैं, वन फॉर विड्थ एंड सेकंड फॉर हाइट। आर डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले हमारे पास एक मेथड है जो कि आपने डिफाइन किया था रेक्टेंगल के पेरेंट क्लास यानी कि शेप में और हेड, और इसका काम क्या था कि जस्ट जो नाम था रेक्टेंगल का इसने वो डिस्प्ले करना था। तो रन क्लास में जब आप डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो ये बेसिकली डिफाइन था शेप क्लास में, और ये उस शेप का जो नेम होगा वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा। और इसी क्लास में रेक्टेंगल में आपने जो मेथड डिफाइन किया था कैलकुलेट एरिया का, वो आप जब कॉल करेंगे तो बेसिकली ये वाला जो मेथड है ये कॉल हो जाएगा।
ये कैलकुलेट करेगा उसके एरिया को, और वो एरिया हमारे पास जो भी बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दे देगा। अगर ये कोड मैं आपको चला सकूँ, नाउ लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। दिस इज रेक्टेंगल एंड एरिया इज 2.76। हमने जो वैल्यूज उसको दी थी उसकी बेस पे इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का जो एरिया बनेगा दैट इज 2.76। तो इन दिस वे यू कैन डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फिर आप लाजमी इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास में। और चाइल्ड क्लास में आपने जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन कर दिए तो ये क्लास कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट होने के बाद अगर आप उसके ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करके यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं।